फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द फंड्स। सारा ड्रीम आपका वहीं पर ही शैटर हो जाएगा। यू नीड टू नो योर बजट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज नॉट जस्ट अ फीस, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर कॉस्ट इन्वॉल्व व्हेन यू थिंक अबाउट स्टडी अब्रॉड। इस बजट में कौन सी कंट्री मेरा जो फ्यूचर का प्लान है उसको सेटिस्फाई कर पाएगी। हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता फ्रॉम VSC Global Education and today I'm going to talk about UK study visa process, the upcoming intakes, type of different study visas, the cost of them and also the turnaround time for them, and also the current trend of visa acceptance. This video is going to be very research based, information based, so make sure you watch this video till the end. And also if you are interested in applying to any country like UK, US, New Zealand, Australia, Canada, Dubai, Ireland, Germany, reach out to us. We do process for all these countries. You can click on the link given in the description and our counselor will help you through the entire process. Process is not when you reach out to a consultant. It begins with when you decide that you want to study abroad. Now country can be any. Now I am not going to be specific about UK. Why? Because when you actually think about that you want to go abroad for higher education, you actually need to understand first most important thing is the funds. The course and the country comes later. Why I'm saying this is because we have recently got a lot of inquiries where people know which country they want to go, people know like which course they want to opt for. They are very clear, this country, this college, this course, but when it comes to the funds they are not justifiable for that particular country, for that particular course, for that particular college. So then सारा ड्रीम आपका वहीं पर ही शैटर हो जाएगा। आपको स्टार्ट करना है फंड से। आपके पास खुद के फंड्स हैं, येस और नो। आपको कौन स्पॉन्सर करेगा? आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करेंगे, येस और नो। कितने फंड्स हैं, कितनी ITR है, या फिर अगर आप लोन लेंगे तो कितने तक का लोन आपको मिल पाएगा। ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। जब आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे आपका बाहर जाने का प्लान बहुत स्मूथ हो जाएगा, क्योंकि देन यू विल नो your budget. You need to know your budget. You need to understand that there is not just a fees, there are a lot of other costs involved when you think about study abroad. There are living expenses, there are travel costs, there are first time settling in amount जो आप नया accommodation लोगे. Then there is a new country, you will need a lot of things over there. उसमें बहुत सारे expense होते हैं, तो एक अच्छा खासा decent amount बनता है when you think about study abroad. So you need to sort out your funds first. Now when you have actually sorted out, then you should think about इस बजट में कौन सी कंट्री मेरा जो फ्यूचर का प्लान है उसको सेटिस्फाई कर पाएगी। Now इस केस में you need to think about आपका लॉन्ग टर्म आइडिया क्या है स्टडी अब्रॉड का। Do you want to settle in that particular country or you want to come back to your home country? Because some countries do not offer stay back option for PR. आप जाओगे, पढ़ोगे, अपना वर्क वीज़ा अवेल करोगे, वापस आओगे अपने होम कंट्री में। But some does offer PR options when you go to that particular country, आप वहाँ पे PR ले सकते हो। So you need to think from all that perspective. इन सब चीज़ों के लिए हम ही आपके हेल्प में आते हैं, बिकॉज हमारे पास काउंसलर्स हैं जो एक्सपर्ट्स हैं जो ये सारी चीज़ें इवेल्युएट करके आपको बता पाएंगे कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स, कौन सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कितने बजट में आप ये कर पाएंगे। ये सारा काउंसलिंग का पार्ट होता है। सो अगर आपको डिफ़िकल्टी हो रही है टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स, यू कैन रीच आउट टू अस, ये हम आपको सॉर्ट करके देंगे। वंस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सॉर्टेड, एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन के लिए कुछ प्री रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें एक होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो आइल्स होता है। यूके के केस में स्पेसिफिकली आइल्स एग्ज़ाम आपको देना होता है, उसका रिजल्ट होता है। इन सम केसेस आइल्स वेवर भी मिलता है। ये बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। आइल्स वेवर की हमारी वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप रीच आउट करके डायरेक्टली काउंसलर से कनेक्ट करके बात कर सकते हैं कि आइल्स वेवर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप आइल्स का एग्ज़ाम देंगे, आइल्स का रिजल्ट आएगा, आपका कॉलेज में एप्लीकेशन होगा। कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का जो टर्न अराउंड टाइम है ऑफर लेटर रिलीज़ करने का वो होता है 3 to 4 weeks, जनरली 1 महीने का। बट इन सम केसेस 1 हफ्ते में भी ऑफर आ जाते हैं। सो दैट डिपेंड्स ऑन कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट एंड ऑल्सो देयर टाई अप विद द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज। सो जैसे अभी नियरेस्ट इनटेक है जैन इनटेक, सो अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं जो आपको जल्दी ऑफर दे देंगी। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट यू कैन गेट to know with us and you will get to know which university or college can give you offer letter
in 1 week if you are planning for Jan intake. Okay, once you apply for offer letter, then आपका आता है credibility interview. जो आप ऑफ़र अप्लाई करेंगे आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी के साथ credibility interview होगा. हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ये नहीं होता है, बट इन सम केसेस होता भी है. तो वहाँ पे वो आपका डिटेल एनालिसिस लेते हैं. सो जो भी आपका पास्ट प्रेजेंट रहा है या जो भी आपके फ्यूचर प्लान्स हैं उसी के बारे में एक बेसिक डिस्कशन होता है, जहाँ पे वो आपकी इंग्लिश चेक करते हैं और आपका बैकग्राउंड जो भी आपने मेंशन किया है आपकी फ़ाइल में वो पूछते हैं. इफ़ यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल विद देम, you will go through for sure. And obviously in that case we prepare students for credibility interview so that you do not fail it. It's a very crucial step in terms of your UK study visa process. Now once credibility interview goes through, your offer will come. In this duration we ask student to manage the funds. Case of UK you need 28 days old funds. अगर 28 days नहीं है तो आप लोन ले रहे हैं तो लोन सैंक्शन करवाना, ये सारा प्रोसेस इसी ड्यूरेशन में हम फाइनल करने के लिए बोलते हैं, सो दैट वंस द ऑफर लेटर कम्स हम आगे का प्रोसेस कर सकें. जैसे ही ऑफ़र आएगा आपको पेमेंट करनी होगी इनिशियल डिपॉजिट की. जैसे ही आप इनिशियल डिपॉजिट पे करेंगे आपका कैश एप्लीकेशन रेज होगा. वहाँ पे आपको सारे अपने फ़ंड्स के डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे कैश शील्ड में, जहाँ पे लोन का सैंक्शन लेटर जाएगा. अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपका ऑफर लेटर आने के बाद आपको इनिशियल डिपॉजिट पे करना होता है. इनिशियल डिपॉजिट पे करने के लिए कैश एप्लीकेशन लगेगा जहाँ पे आपके फ़ंड्स के सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे. और अगर आप लोन एजुकेशन लोन के थ्रू जा रहे हैं तो आपका लोन सैंक्शन लेटर लगेगा. वंस कैश नंबर इज़ रिसीव्ड, स्टार्ट द वीज़ा प्रोसेस. नाउ जैसे ही आपका कैश लेटर आ जाएगा आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. बहुत सिंपल है. कैश आ गया, वीज़ा एप्लीकेशन आपका होगा जिसमें आपका इंश्योरेंस इंक्लूडेड होगा, वीज़ा एम्बेसी फ़ीस इंक्लूडेड होगी. वीज़ा सबमिट होगा, वीज़ा आपका अप्रूव हो जाएगा. वीज़ा सबमिट होगा आपका. जैसे ही वीज़ा सबमिट हो जाएगा आपके पास बायोमेट्रिक की डेट आ जाएगी. डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, VFS ऑफिस जाएंगे, बायोमेट्रिक देंगे. आफ्टर बायोमेट्रिक 3 से 4 हफ्ते में आपका वीज़ा आ जाएगा. ये बहुत सिंपल है. और एक बार अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होके कैश लेटर आ गया, UK के केस में रिजेक्शन रेट बहुत कम है. मैं बोलूँगी 98% रिजेक्शन रेट है. बहुत ही स्मूथ होता है UK का स्टडी वीज़ा. वंस यू रिसीव योर कैश यू आर डन विद इट, यू विल गेट योर वीज़ा फॉर श्योर. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट UK का जो प्रोसेसिंग टाइम है आफ्टर बायोमेट्रिक क्या रहेगा, कितने तरीके के वीज़ाज़ हैं, क्या टर्न अराउंड टाइम है और क्या उनकी कॉस्ट है. सो सबसे पहले है स्टैंडर्ड वीज़ा जो बायोमेट्रिक के बाद 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, जिसकी फ़ीस है 56,000 रुपीज़ इन INR. नेक्स्ट कम्स इस प्रायोरिटी वीज़ा. सो सपोज जैसे जैन इनटेक के लिए अगर आप अभी अप्लाई करते हो, आपका टाइम थोड़ा सा कम होगा तो आप प्रायोरिटी वीज़ा के लिए एम कर सकते हो, जिसका बायोमेट्रिक के बाद 10 डेज़ में आपका वीज़ा आ जाता है, जिसकी फ़ीस है 1,10,000 इन INR, इंडियन रुपीज़. नाउ कम्स सुपर प्रायोरिटी वीज़ा जिसका वीज़ा 2 दिन में आ जाता है. 1,50,000 इसकी फ़ीस है. डिपेंड्स अपॉन योर टाइम लाइन. अगर आपका टाइम लाइन बहुत क्लोज है तो फिर हम तब बोलते हैं प्रायोरिटी या सुपर प्रायोरिटी पे जाने के लिए. अदरवाइज़ अगर डिसेंट टाइम लाइन है तो वी प्रेफर स्टैंडर्ड. आपका स्टैंडर्ड वीज़ा फाइल का हम सजेस्ट करते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीबडी, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है. बस यू नीड टू हैव डिसेंट टाइम. नाउ इंटेक्स की अगर मैं बात करूँ, 2 मेजर इंटेक्स होते हैं, जैन इंटेक एंड सितंबर इंटेक. बीच में कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको ऑफर दे सकते हैं फॉर श्योर, बिकॉज उनके पास इंटेक्स अवेलेबल होते हैं. बट मेजर इंटेक्स ये 2 होते हैं. जैन इंटेक के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैन 25 के लिए. इफ़ दैट क्लोज, विच विल क्लोज वेरी सून, देन सितंबर इज़ योर नेक्स्ट इंटेक. सो यू कैन प्लान इन एडवांस. आइल्स दे वो सारे प्रोसेस करोगे इतना टाइम हो जाएगा. इफ़ यू हैव योर आइल्स रेडी, इफ़ यू हैव 28 days old fund, if you are ready with all these things, you can apply for Jan Intake. Still there are options available, so make sure you reach out to us to apply. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट वीज़ा सक्सेस रेट, तो वीज़ा सक्सेस रेट 2024 का 98% है. 2% है एप्लीकेशन के बेसिस पे ही जो रिजेक्ट हो जाती हैं, जो वीज़ा तक पहुंचती ही नहीं है, ऐसे 2% होंगे. अदरवाइज 98% वीज़ा सक्सेस रेट है. सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस एंड द प्रोसेसिंग टाइम एंड द वीज़ा सक्सेस रेट आर फॉर UK. If you wish to apply for UK or any other country I mentioned before, you can reach out to us. There's a link given in the description that you can click
and our counsel will help you through the entire process. There are a lot of options available for you guys, so yes, do share your interest, reach out to us. We can have a call, we can understand your profile, help you in selecting your course, college, country, everything, understand your fund status, analyze आप कहाँ कौन सी कंट्री एम कर सकते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. इट्स जस्ट वन मैसेज अवे, सो डू रीच आउट to us. And yes, I shall see you guys in the next video. Bye bye.